So let's start with the another method of finding out standard deviation. So far we have discussed actual mean method and assumed mean method. Actual mean method कब यूज करते हैं? जब x बार होल नंबर होता है. अगर x बार होल नंबर नहीं है तो हमारे डेविएशंस माइनस करना x में से x बार को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. So we make use of assumed mean method. Now we are starting with the third method, which is known as step deviation method. So firstly, we will write down the formula. Have you memorized assumed mean method? वो लिख लीजिए फिर. अगर आपने assumed mean method learn कर लिया है वो लिख लीजिए. All of you note it down. You said you have memorized it. Standard deviation is equal to summation over n minus over n under the root. b जहां पर है वहां पर डैश डाल दीजिए. डैश अंडर रूट के बाहर इंटू c. This becomes step deviation method. In that there was dx, in this there is, what is d dash x? dx upon c, where c is a common factor. So sometimes there is one common factor in all the values of the x. It could be 2, it could be 4, it could be 5, it could be 10, 100, 200. ठीक है, तो हम उस कॉमन फैक्टर को डिवाइड कर देते हैं ताकि अपनी कैलकुलेशंस सिंपल हो सके. सपोज 100 कॉमन फैक्टर है, सारी वैल्यूज में से हमने 100 को डिवाइड कर दिया तो 0 0 हट गया, लेकिन 100 से वैल्यूएशन कम हो गई तो फॉर्मूला में आके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. ऑफसेट करना है ना, 100 रुपए लिए थे 100 रुपए देने हैं ना, 100 रुपए डिवाइड किए थे तो 100 रुपए मल्टीप्लाई भी तो करेंगे. वो कहां पे आके मल्टीप्लाई करेंगे? फॉर्मूला में. तो क्या अंडर रूट के अंदर आएगा कि बाहर? ठीक है. सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला. सो इफ यू हैव रिमेंबर्ड assumed mean formula method, it's easy to remember. No? Shall we do one question? Write down. Find out standard deviation of monthly income. Find out standard deviation. Write it down. Find, you haven't even written the formula. Find out standard deviation of monthly income. बेटे मैं सिर्फ आप दोनों को नहीं पढ़ा रही हूँ कि मैं आपके ऊपर ही खड़ी रहूंगी देखने के लिए आप लिख रहे हैं या नहीं. डू इट ऑन योर ओन. फर्स्ट सीट पे बैठ के नहीं आप लिख रहे हो. मंथली इनकम ऑफ 5 persons. So here it is. You are given the data, serial number, monthly income, which is given in rupees, which is as follows: 500, 700, 1000, 1500, 1300. Monthly income is a variable. We can denote it with x. So because we have to calculate standard deviation and we have to make use of step deviation method, so write down the formula: summation d dash x square over n minus summation d dash x over n
whole square under the root into c. So firstly, we have to take one value as an assumed mean. You can take any of these values. You can take any value beyond these. I am taking 1000 क्योंकि इससे मेरे को लगता है माइनस करना इजी रहेगा मेरे लिए, तो मैंने 1000 ले लिया, आप जो मर्जी ले लो. मेरे को dx निकालना है. What is dx? x minus a. What is a? So आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, आप ऊपर ही लिख लो x minus 1000. Are you doing along with me? There are still many students who are not writing anything. So start doing. Don't look at the board. Start doing. Subtraction आती है? किसी को नहीं आती तो वो बोर्ड पे देख ले. जिसको आती है वो खुद कर ले. आपको नहीं आती बेटे? करो. This is what? dx. और क्या चाहिए हमें अब? d dash x. So keep one thing in mind in future. अभी मैंने पहले जान के नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बता देती तो आपको पता ना चलता कि मैम क्यों कह रहे हैं. Always start the question from extreme left. अभी आपने देखा होगा, आपने खुले खुले कॉलम्स बनाए, 3 कॉलम्स में आपकी भर गई जगह, फिर आप नीचे करोगे तो उससे कैलकुलेशन में मिस्टेक होंगी और सम अच्छा भी नहीं लगता. सो यू हैव टू गो इन अ सिंगल फ्लो. ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट, कॉलम शुड बी नैरो. डी डैश. क्या कुछ कॉमन फैक्टर है यहाँ पे? तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करना, मतलब 0 0 कट जाने हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे. d डैश x स्क्वायर. लास्ट वाले 2 कॉलम्स का हम टोटल ले लेंगे. ठीक है, फाइंड इट आउट. व्हाट इज Okay, all right. So what we need to do now is, have you find out its total? 36 plus 36. अच्छा, 34 plus 34, and this is 0. ठीक है, so let's put the values. Summation d dash x square 68. n is 5. Summation d dash x is n is into c. ठीक है, 68 को 5 से डिवाइड करें. हाँ जी, 13.6. ये 0 हो जाएगा. 0 का स्क्वायर 0, इसमें से -0, 13.6. So square root of 13.6 into 100. ठीक है, कहाँ से आया मतलब?
यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है, क्या है कॉमन? फिर C100 ले ली। अगर ये 50-30 होता या इधर, तो हम 10 लेते। ठीक है, ओके। सो 13.6 का हमको क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मैंने आपको कल स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सिखाया था। सो कैन यू डू इट ऑन योर ओन? प्लस माइनस नहीं करते बेटे, आप क्या स्क्वायर रूट निकालोगे? पॉइंट के बाद 0, पेयरिंग करी। अब आपको अंदाजा हो गया 3 3s are 4 4s are, और ये क्या है? तो फिर ये 3 और 4 के बीच में होगा, तो 3 3s are 9। कितना रिमाइंडर? 4। पेयर उतार लिया, यहां पॉइंट है, यहां पर भी पॉइंट हो जाएगा। 3 का डबल 6, 6 8s are 48 नहीं आएगा। 6 7s are 42 करके देख लेते हैं। 7 7s are 49, 6 7s are 42 प्लस 4, 6 ज्यादा आ गया, नहीं जा रहा, तो 6 पे जाएगा। 6 6 are 36, 396 किस पे गया? ये 6 पे गया। 60, ये ठीक है, करके देख लिया ना। 66 इंटू 6 है, तो इंटू 6 जो ये वाला 6 है वो यहां लिखना है। यहां पे क्या आ गया? 66। तो रिमाइंडर कितना बचा? 64। अब क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम 0 का पेयर उतार सकते हैं। अगर ना लगा होता तो पॉइंट लगा के 0 का पेयर उतारते। अब इसका डबल क्या है? 72। 36 का डबल लेना बेटे, पॉइंट इग्नोर करना। 36 का डबल। अब 72 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जिसके ये और ये सेम होने चाहिए। तो लेट्स सी, 8 पे मुझे लगता है ये जाएगा। हाँ, 8 पे जाएगा। 8 8 जा 8 2 जा 16 प्लस 6, 8 2 जा 16 प्लस 6 22, 56 प्लस 2 5824। यहां से मैं अब इरेज कर रही हूं ये वाला 8, इसकी जगह लिख रही हूं यहां पर 3.68। अब रिमाइंडर देखो, 6 7 5। अब मैंने कल आपको ये बताया था कि हमने 2 डिजिट्स तक लेना है, बट इन दिस केस क्योंकि हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है बेटे, ठीक है, तो हम इसको आगे चलेंगे, क्योंकि जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 368 हो गया, तो ये हमारा होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आपने इतना याद रखना है, अगर हमने कॉमन फैक्टर लिया है तो हमें अगला डिजिट तक जाना पड़ेगा। एक और डिजिट पे जाएंगे हम। 368 का डबल 736। यहाँ पे फिर 0 का पेयर उतार लिया। अब देखो 736 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 7 के साथ जाएगा मुझे लगता है। 7 7 जा 6 7 जा 42 प्लस 4 21 प्लस 4 49 प्लस 1। ठीक है, चला गया। तो यहाँ पे लिख दो, आगे करने की जरूरत नहीं है। सेव योर सेल्फ सम वर्क। 3.687। नो नीड के क्या रिमाइंडर बचा है? हमें 3 4 डिजिट्स तक चाहिए था, हमने वहां तक कर लिया। सो हमारा आंसर आया 3.687 into 100. So what is our standard deviation? Rupees. One thing, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम यूनिट्स में होगी। हम किस में वेरिएशन निकाल रहे हैं? मंथली इनकम में। मंथली इनकम किस में गिवन है? रुपीज में। डॉलर में गिवन होती तो हम डॉलर में आंसर दे देते। तो कितनी वेरिएशन हुई?
368.7, यानी इन लोगों की इनकम में एवरेज से इतनी वेरिएशन आ रही है। ठीक है, 3 मेथड्स कर लिए हमने। पहला कौन सा किया, आप बोलोगे? पहला कौन सा मेथड किया? फर्स्ट मेथड वाज, सेकंड assumed mean, third let's start with the fourth method, direct method, very simple. बस ये लास्ट है, उसके बाद डिस्क्रीट पे आएंगे। डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला लिखो, कैपिटल एक्स यूज करना है यहाँ पे। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। नहीं देखा नहीं, साथ साथ लिखते हैं बेटे, ये कुछ समझा नहीं रही मैं, साथ साथ लिखो। ओवर एन, ठीक है बच्चे? दिस साइड एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर अंडर द रूट। दिस मेथड इज यूज्ड, लिख लो, टू बी यूज्ड व्हेन values of x are small. Would you write it down, Purav? This method is to be used when values of x are small. Small मतलब till 20. ठीक है, ऐसे कर ले, till 20, 30, 40 भी हो जाए, 50 तक लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 50 तक इसमें वैल्यूज हैं। क्योंकि इसमें आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर है, मतलब वैल्यू का स्क्वायर लिया। कोई डेविएशन नहीं ली, एक्स बार से भी नहीं ली, एज्यूम्ड मीन से भी नहीं ली, एक्स का स्क्वायर ले लिया। तो अगर एक्स हो गया 500, 600, 78, 88, तो उसका स्क्वायर मुश्किल होगा ना, कैलकुलेटर हमें अलाउड नहीं है। तो इसीलिए इस मेथड को कब यूज करना है, जब x की वैल्यूज 50 तक वेरी करती है। ठीक है, राइट डाउन वन क्वेश्चन, फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये x की वैल्यूज, नोट इट डाउन, x की वैल्यूज। कौन सा मेथड यूज करना है, फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्यों लिखते हैं बेटे, इससे आपको कॉलम्स कौन से बनाने हैं ये पता चल जाता है। फॉर्मूला लिख लो, दोबारा से लिख लो नीचे, वी विल नॉट मेक एनी एफर्ट्स। जितने एफर्ट्स करोगे आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। सो मेनी ऑफ यू हैव नॉट रिटन द फॉर्मूला अगेन, व्हाई वी शुड? ठीक है, इट्स अप टू यू। सिग्मा एक्स स्क्वायर, व्हाट डू वी नीड? एक्स का स्क्वायर कर लो, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। Those who are not speaking, do they not know? Do it. कर लिया बच्चे? क्या प्रॉब्लम है बेटे, करो। Done? Look at the formula again. What do you need? Speak out. Total of and, तो दोनों का टोटल ले लो।
टोटल ले लो, आता है हमें करना, कर लो फिर। व्हाट इज सिग्मा एक्स? 150, 5500। ठीक है, put the values in the formula. ये मैंने आपको पहले बोला था, यहां बीच में नहीं डिवाइड करना। फिफ्टीन का स्क्वायर, हाँ 22500। 5 का स्क्वायर, इसको डिवाइड करो 900। स्क्वायर रूट ऑफ 200 निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 200, पेयरिंग, पीछे से पेयरिंग होगी तो ये पेयर नहीं बना 2, तो ये ऐसा हो तो क्या करेंगे, 1 1 1 इज रिमाइंडर, पेयर उतार लिया। 1 का डबल 25 5 125, नहीं 24 4 96, 4 बचा, कम है तो पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे तो 0 का पेयर आ जाए। 14 का डबल 28 1 281 1 ठीक है, पता चल गया। यहां तक भी छोड़ सकते हो, एक और डिजिट तक हम कर लेते हैं। 0 का पेयर 141 का डबल 282, ये 5 भी नहीं 4 पे ही जाएगा, 14.14। ठीक है बच्चे, बाकी इधर जिनका हो गया जस्ट रेज योर हैंड।